हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था काउंटिंग थिंग्स, कैसे किसी चीज़ को काउंट करते हैं. इस चैप्टर में हम देखेंगे ग्रुप नाउन्स या कलेक्टिव नाउन्स. क्या होता है ग्रुप नाउन्स या कलेक्टिव नाउन्स? तो ये समझने के लिए एक पैराग्राफ हम पढ़ लेते हैं. अ विजिट टू द जू. Last Sunday, a strange thing happened during our visit to the Kolkata Zoo. We saw many animals. We saw a few elephants, a herd of deer, a herd of bison, and a pack of hyenas. A troop of monkeys entertained us. A flock of geese had come to spend their winter holidays in the lake within the zoo. Then we went to see hippopotamuses. The hippos were kept in a marshy enclosure surrounded by a high wall. The viewing platform is 10 feet above the ground. We climbed a flight of stairs to reach there. In the end, we went to see the tigers. The tigers' area is separated by a low wall and a moat. There was a shoal of fish in the moat. A few tigers were lazing around in the winter sun. A litter of tiger cubs were playing among themselves. Suddenly, two young men jumped over the wall, swam across the water, and rushed towards the nearest tiger. They were carrying a bouquet of flowers and a garland. They were shouting, "Jai Sherwali Mata." As the crowd of visitors watched in horror, the young men tried to put the garland around a tiger's neck. But the big cat, unlike humans, wasn't fond of garlands. It growled and slapped the man with its paw. Then it turned round and walked away calmly. But its casual blow was enough to break the man's neck. His friend jumped back into the moat and swam to safety. Later, he said that he and his friend belonged to a group of devotees of the Sherwali Mata, a goddess who rides a tiger. These young men wanted to offer flowers to the mount of the goddess. तो यहाँ पर एक सिंपल एग्जाम्पल दिया हुआ है. तो यहाँ पर कुछ फ्रेजेस का इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है. दैट इज हर्ड ऑफ डेयर, हर्ड ऑफ बाइसन, pack of hyenas, troop of monkeys, flock of geese, flight of stairs, shoal of fish, litter of tiger cubs, bouquet of flowers, crowd of visitors. तो ऐसे वर्ड्स हर्ड, पैक, ट्रूप जो किसी कलेक्शन या किसी ग्रुप को बताती हो, ऐसे वर्ड्स को या ऐसे नाउन्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप नाउन्स और कलेक्टिव नाउन्स. ओके, दैट इज बेसिकली ग्रुप नाउन्स. तो उसका डेफिनेशन देख लेते हैं. अ नाउन such as committee, herd or pack, which refers to a group of people, animals or things, is known as a group noun or a collective noun. Right? जो किसी people को, animals को या चीज़ों को describe करने के लिए use होता हो, that is called a group noun or collective noun. अब group nouns बहुत सारे होते हैं, right? बहुत सारे group nouns हो सकते हैं. For example, a crowd of people, a pack of cards, a pride of lions. लेकिन हर ग्रुप नाउन यूनिक होता है. हम कुछ कलेक्शन को के साथ ही कुछ ग्रुप नाउन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, लायंस के साथ ही हम प्राइड का इस्तेमाल करते हैं. पीपल के साथ ही क्राउड का इस्तेमाल करते हैं. कार्ड्स के साथ पैक का इस्तेमाल करते हैं. राइट? हम ऐसा नहीं बोल सकते प्राइड ऑफ मंकीज. नो, वी कांट से दैट. राइट? तो हर ग्रुप नाउन यूनिक होता है. every group noun is unique with some collection. लेकिन ऐसा भी ग्रुप नाउन होता है जो यूनिक नहीं होता और उसे कई जगह पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हर्ड, HERD. तो ए हर्ड ऑफ बफेलो, ए हर्ड ऑफ बाइसन, ए हर्ड ऑफ कैटल, हर्ड ऑफ काउस, हर्ड ऑफ डियर, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, हर्ड ऑफ जीब्रास, हर्ड ऑफ वेल्स. राइट? अब ग्रुप नाउन्स बहुत सारे होते हैं, इन्फिनिट. राइट? कई तो हम हमारे लाइफ में कभी इस्तेमाल करते ही नहीं हैं. तो इस चैप्टर में हम वही ग्रुप नाउन्स देखेंगे जो हम यूज करने वाले, उसके चांसेस ज़्यादा है. राइट? तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. एनिमल्स के साथ हम करते हैं कौन कौन से. एंट्स के साथ क्या यूज करते हैं? आर्मी, एन आर्मी ऑफ एंट्स. ए कॉलोनी ऑफ एंट्स, ए स्वॉर्म ऑफ एंट्स. बीस के साथ स्वॉर्म. बर्ड्स के साथ फ्लॉक, फ्लाइट. बटरफ्लाइज के साथ रेनबो. चिकन के साथ ब्रूड, अ ब्रूड ऑफ चिकन. फिश के साथ शोल या स्कूल. डॉग्स के साथ पैक. गीस के साथ फ्लॉक. किटन्स के साथ लिटर. पपीज के साथ लिटर. माइस के साथ होर्ड.
शीप के साथ फ्लॉक, वोल्स के साथ पैक। फिर जो एनिमल्स नहीं है, जो दूसरे चीज होते हैं, ब्रिक्स के साथ पाइल, बुलेट्स के साथ शार, कार्ड्स के साथ पैक, करेंसी नोट्स वेड, फ्लैट्स ब्लॉक, फ्लावर्स के साथ दो, बोके और बंच, ग्रेप्स के साथ बंच, हट्स के साथ क्लस्टर, कीज के साथ रिंग, पेंटिंग्स के साथ कलेक्शन, प्लेयर्स के साथ टीम, शिप्स के साथ फ्लीट या फ्लोटिला, सोल्जर्स के साथ ट्रूप, स्टेयर्स के साथ फ्लाइट, स्टोर्स के साथ चेन, ट्रक्स कॉन्वॉय। राइट, तो ये कुछ ग्रुप नाउन्स हैं। राइट, नेक्स्ट टॉपिक, सिंगुलर वर्ब्स और प्लूरल वर्ब्स। अब जो ग्रुप नाउन्स हम यूज करते हैं उसके साथ वर्ब कौन सा लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा या प्लूरल वर्ब लगेगा। तो ऐसा सोचो फ्रेंड्स कि जब हम ग्रुप नाउन यूज करते हैं तब हम एक पूरे ग्रुप को एज ए सिंगल यूनिट बताते हैं, एक। राइट, फॉर एग्जांपल अ पैक ऑफ हाइनास, तो उसको एज ए सिंगुलर हम मानते हैं जनरली, तो उसके साथ वर्ब भी कौन सा लगेगा, सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। राइट, तो वही यहाँ पर दिया हुआ है। ग्रुप नाउन्स आर यूजुअली ट्रीटेड एज सिंगुलर, उसको सिंगुलर ही मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक दिया हुआ है, अ फ्लीट ऑफ शिप्स डैश थ्रू दिस चैनल एवरी डे। शिप्स की एक फ्लीट इस चैनल से रोज गुजरती है, तो वहाँ कौन सा आएगा, पास आएगा या पासिस, सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब। तो वहाँ सिंगुलर वर्ब आएगा, पासिस। अ फ्लीट ऑफ शिप्स passes through this channel every day. उसी तरह a committee of students is empowered to decide this. स्टूडेंट्स की एक कमेटी के पास इसे डिसाइड करने का पावर है, तो इस, क्योंकि ये कमेटी है। बट इंडिया में जनरली कौन सा इंग्लिश फॉलो होता है, यूके इंग्लिश। यूके इंग्लिश में हम या तो सिंगुलर वर्ब का या प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं कलेक्टिव नाउन्स के साथ, बेस्ड ऑन सिचुएशन को ध्यान में रखकर हम कलेक्टिव नाउन के साथ या ग्रुप नाउन के साथ या तो सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब कोई भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, द कमिटी हैज डिसाइडेड टू चेंज द रूल्स। क्योंकि कमिटी को हमें इसे सिंगुलर बताना चाहते हैं, कमिटी हैज डिसाइडेड टू चेंज द रूल्स। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द कमिटी हैव बीन आर्ग्यूइंग ऑन दिस इश्यू। कमिटी इस इश्यू के ऊपर आर्ग्यू कर रही है, तो देखो यहाँ पर तो प्लूरल वर्ब इस्तेमाल हुआ, हैव। क्यों, क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं कि कमिटी के अंदर के मेंबर्स आपस में आर्ग्यू कर रहे हैं, तो वहां पर हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो जब हम कमिटी या ग्रुप के अंदर के चीजों को रिफर करना चाहते हैं तो वहां पर हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, बट जब हमें उसे ऐसे सिंगल यूनिट बताना है तो वहां पर सिंगुलर वर्ब यूज होगा। राइट, उसी तरह देखो दूसरा एग्जाम्पल, द इंडियन फुटबॉल टीम इज ऑन द फील्ड। जो फुटबॉल टीम है फील्ड पर है, मौजूद है, तो ऐसे सिंगल यूनिट था टीम, तो इसलिए सिंगुलर वर्ब। लेकिन देखो, द इंडियन फुटबॉल टीम आर वेयरिंग डिफरेंट कलर्ड सॉक्स। इंडियन फुटबॉल टीम के जो मेंबर्स है या प्लेयर्स हैं उन्होंने अलग अलग कलर के सॉक्स पहने हैं, तो यहाँ क्योंकि हम अलग अलग लोगों के बारे में बात कर रहे हैं टीम के अंदर के, तो वहां पर हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं, आर। ओके, अब ये एक एक्टिविटी दिया हुआ है, ये आप खुद से भी कर सकते हो। राइट, a flock of birds, a herd of cows, a pride of lions, a pack of wolves, a swarm of bees, a rainbow of butterflies, a litter of puppies. उसी तरह people के लिए क्या होगा, board of directors, gang of robbers, fleet of ships या cars, caravan of gypsies, chain of stores, pile of bricks, bouquet of flowers. Okay? Next है name of institutions. अब institutions के नाम के साथ कौन सा वर्ब जाएगा, राइट? इंस्टीट्यूशंस के नाम कौन कौन से होते हैं, ये सब इंस्टीट्यूशंस के नाम है, पोस्ट ऑफिस, यूनाइटेड नेशंस, ऑल इंडिया रेडियो, ईस्ट बंगाल, यूनियन बैंक, इन सब के साथ कौन सा वर्ब जाएगा, सिंगुलर या प्लूरल? तो वहां पर भी बेस्ड ऑन सिचुएशन या तो सिंगुलर वर्ब का यूज कर सकते हैं या तो प्लूरल वर्ब का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईस्ट बंगाल इज इन गुड फॉर्म दिस ईयर। इस बार ईस्ट बंगाल अच्छे फॉर्म में है, तो वहां पर हम एज ए सिंगुलर उसे मान रहे हैं या एक सिंगल यूनिट मान रहे हैं, तो वहां पर ईज यूज किया। या ईस्ट बंगाल आर प्लेइंग बैडली टुडे, तो यहाँ पर ईस्ट बंगाल के जो प्लेयर्स है वो बुरा खेल रहे हैं,
कि प्लेयर्स की बात करें हर एक प्लेयर की, तो वहां पर प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल हुआ, राइट। उसी तरह द यूनियन बैंक इज प्लानिंग टू ओपन एन ऑफिस इन चाइना, चाइना में यूनियन बैंक एक ऑफिस ओपन कर रहा है, प्लान कर रहा है, तो वहाँ ईज, क्योंकि वो सिंगल यूनिट बताना चाहते हैं। अब वो ये एक्टिविटी आपके लिए है फ्रेंड्स, ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर का। पहले आपको लगाना है ग्रुप नाउन, फिर लगाना है वर्ब, या तो सिंगुलर या प्लूरल। पढ़ लेते हैं। अ डैश ऑफ सोल्जर्स डैश अलोंग दिस हाईवे एवरी मॉर्निंग, यानी सोल्जर्स की एक ग्रुप इस हाईवे से मार्च करती है। अब यहाँ पर पहले सोल्जर्स के साथ ग्रुप नाउन कौन सा आता है? अ ट्रूप ऑफ सोल्जर्स, राइट। अब बताइए फ्रेंड्स कि यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगा या प्लूरल? अब क्योंकि ट्रूप एक सिंगल यूनिट है तो वहाँ पर क्या आएगा? मार्चेस। अ ट्रूप ऑफ सोल्जर्स मार्चेस अलोंग दिस हाईवे एवरी मॉर्निंग। फिर द डैश ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी डैश अबाउट पेमेंट ऑफ बोनस, कंपनी के कंपनी के डायरेक्टर्स का एक ग्रुप बोनस के बारे में डिसाइड करती है। तो यहाँ डायरेक्टर्स के साथ ग्रुप नाउन कौन सा आएगा? बोर्ड, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब बोर्ड जैसे हमने बोला है तो ऐसे सिंगल यूनिट हम मानते हैं, तो यहाँ पर डिसाइड्स आएगा, डिसाइड्स अबाउट पेमेंट ऑफ बोनस। अ डैश ऑफ पीपल डैश एट दिस बस स्टॉप एवरी मॉर्निंग, पीपल की एक ग्रुप इस बस स्टॉप पर रोज मॉर्निंग पर वेट करती है। तो पीपल के लिए कलेक्टिव नाउन कौन सा आएगा? ग्रुप ऑफ पीपल। अब यहाँ पर आंसर है दोनों आ सकते हैं, वेट भी आ सकता है या वेट्स भी आ सकता है। ग्रुप तो क्या होगा? सिंगल, तो ग्रुप ऑफ पीपल वेट्स एट दिस बस स्टॉप, या ग्रुप ऑफ पीपल इंसानों की ग्रुप, तो वहाँ पर हम वेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि कलेक्टिव नाउन या ग्रुप नाउन के बारे में आपको पता चला होगा, क्या है उसका डेफिनेशन, कौन से सिचुएशन में यूज़ करता है, कौन कौन से उसके टाइप्स, राइट, और उसके साथ कौन सा वर्ब लगता है, सिंगल